और चीज़ है जो इस दिन को बहुत स्पेशल बनाती है. So that's all in the first part. अब हम second chapter start करेंगे. Melly, Enzo speaks the word into my ear as he cuddles closer to me in bed. Is 6 on the morning of the wedding bad luck? Good question. As badly as I want to answer to be no, I am desperate for my run of good luck to continue. Probably, I admit. His face falls, you are sure? You know, I say we are not even supposed to see each other today. तो तुम्हें पता है कि आज हम एक दूसरे को पूरे टाइम नहीं देख पाएंगे. Really, Enzo बोलता है. Looks around at tiny living space, clearly confused. तो जो उनका लिविंग रूम था वो थे वो बहुत ही टाइनी, बहुत ही वैसा कंजस्टेड सा था. तो वो जो जहाँ रहते थे दैट्स अ 1 bedroom apartment in Bronx where the living room and the kitchen is merged into one. तो उनका living room and kitchen एक में ही था. Where am I supposed to go to not see you? It's more of a rule for fancy people who are friends with guest bedrooms where they can spend the night. I hate fancy people. He kisses my neck, which makes my whole body tingle. So since we are already broke rules, it is not bad to break mood, yes. Bad luck or not, on any other day I would be powerless to resist him. Well, get my hair looking respectable and put on more makeup than my usual dash of drugstore lipstick. It takes all my self-resistance to push him away. Better not. I need to get ready. तो उसने बोला कि अब मुझे ready होना है. So nothing. Now get ready. He looks baffled. But our wedding is not for 4 hours, right? It's in only 4 hours. Enzo is falling, but he grabs on me so that I can go to the bathroom and I have a shower. Men just don't get it. I had to iron the white shirt he'll be wearing today because such a thing didn't even occur to him, despite the fact that it was clearly unacceptably wrinkled. तो मुझे आज एंसो की शर्ट प्रेस करनी थी जो कि वो अपने वेडिंग डे पे पहनने वाला है, जो कि अनएक्सपेक्टेबली रिंकल्ड है, पूरी क्रश्ड. He will shower in 5 minutes. वो 5 मिनट में नहाएगा. Towel off his hair, throw on his suit, and the whole thing will be done in less than 10 minutes. But I need to look perfect today. पर आज मुझे perfect दिखना है. My parents and I are not close. हाँ, मैं और मेरे parents close नहीं हैं. In fact, I haven't seen them in well over a decade. Even मैंने उनको काफ़ी समय से नहीं देखा है. They abandoned me in my time of need back when I was a teenager. तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था जब मैं टीनेजर थी. When I defended my best friend from being attacked. तो जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने उसे इसलिए छोड़ दिया था, उन्होंने उसकी बात ही नहीं सुनी थी क्योंकि मिली ने अपनी एक फ्रेंड को सपोर्ट किया था जिसके साथ कोई एक आदमी था जो कि उसके साथ गलत कर रहा था. He was trying to abuse that girl और ये सब उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था. तो जो मिली है उसने उसको अटैक कर दिया था जिसकी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ा था. So they threw me to the walls, didn't give me a penny for my defense and never came to visit me when I was locked away. तो जब वो पुलिस स्टेशन में भी थी तब भी उससे कोई मिलने नहीं चाहता था. And even after all that I was willing to forgive and forget. They are my parents. और वो सिर्फ ये कर रही थी कि भूल जाऊँ या उनको माफ़ कर दूँ because they are my parents after all, but they were not. पर वो लोग नहीं थे. You are a bad apple, Millie. We don't want you poisoning our lives anymore.
You don't know what it feels like for your parents to call you a poisoned apple. आपको अगर आपके पेरेंट्स कुछ भी गलत बोलते हैं तो पता है सीरियसली कैसा फील होता है, वो हम ही जान सकते हैं, वही इंसान जान सकता है जिसके पेरेंट्स उसको इतना कुछ गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम पेरेंट्स से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. It doesn't feel great yet. No matter how much they pushed me away, I still crave their support. उन्होंने मुझे कितना भी पुश किया, मुझे नहीं सपोर्ट किया, बट स्टिल मुझे आज भी क्रेव होता है, मुझे आज भी बहुत मन करता है कि वो मेरे से मिले, मुझे उनका सपोर्ट. आई लव देम एंड मोर देन एनीथिंग आई वांटेड देम टू सी आई हैड चेंज फ्रॉम द गर्ल आई यूज्ड टू बी. तो शी सेड कि जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी चेंज हो गई हूँ, जैसी लड़की मैं पहले थी और जो मैं अब हूँ और जो मैं बन गई हूँ. आई हैड बीन वरीड आई वुड नेवर सी देम अगेन. मुझे बहुत चिंता होती है कि शायद मैं उनको अब कभी नहीं देखूँगी. एंड आई वॉज said that since Inzo's entire family is either deceased or back in Sicily, he would have no family members at our wedding. तो यार हम जब नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, जब हमें लगता है कि यार ये चीज़ अब कभी नहीं हो सकती, लाइक मिली इस थिंकिंग कि कभी भी मैं अपने पेरेंट्स से शायद अब नहीं मिल पाऊँगी, तो ये चीज़ ना यार बहुत ज़्यादा लॉस्ट, बहुत ज़्यादा आपको कैसे बताऊँ कि बहुत ही फील है ना, वो कोई फील नहीं कर सकता, वो वही फील कर सकता है इसलिए सीरियसली सारी चीज़ें हो रही हैं. और वो बोल रही है कि इवन जो इंजो की फैमिली है उसमें से भी उनके मेंबर्स की डेथ हो गई है और नहीं है, तो उसके पास भी कोई नहीं होगा. I told this to Enzo one night, not long after his proposal. He was the one who convinced me to call them and let them know about the wedding and the baby. तो Enzo को मैंने एक दिन बताया था ये सारी चीज़ें और he was the one जिसने मुझे convinced किया था कि मैं उनको कॉल करूँ, बताऊँ wedding के बारे में, baby के बारे में. So my mother did not sound excited when she realized I was on the other end of the line. तो उसने कॉल किया, बट जब मैंने अपनी मम्मी को कॉल करा तो पता चल जाता है कि सामने वाला आपसे बात करने के लिए कितना खुश है आपका नाम सुन के और नहीं. तो उसकी मम्मी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुई उसकी बात सुन के, पता चला कि सामने मिली है. At first I thought she might hang up on me. पहले मुझे लगा कि वो शायद फ़ोन मेरे ऊपर मुँह पे काट देंगी. But then when I told her I was trying to get my degree in social work, she considerably. तो जब मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मैं सोशल वर्क के बारे में डिग्री लेना चाहूँगी, तो वो शायद थोड़ी काम डाउन हो गई हैं. She wasn't thrilled to hear I was pregnant out of wedlock. तो वो बिल्कुल भी एक्साइटेड, बिल्कुल भी थ्रिल्ड नहीं है सुन के कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी. But she was glad to know that I had soon be marrying the father of the baby. But चलो उनको इस बात की तो खुशी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ जिससे मैं शादी करने वाली हूँ. And when I extended a wedding invitation, she told me she would be there. तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि वो आएंगी. My parents will be our only guest at our wedding. तो सिर्फ मेरे पेरेंट्स होंगे हमारी शादी में as a guest. The only witness to our holy matrimony. तो वही होंगे हमारी शादी में हमारे witness. I'm so nervous about seeing them again after all this time. Of course अगर आप बहुत टाइम के बाद किसी से मिल रहे हो और वो भी अपने पेरेंट्स से, तो इंसान बहुत ही ज़्यादा नर्वस, तो नहीं पता चलता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या उनका रिएक्शन होगा. I'll say the wrong word and screw things up all over again, but I'm also excited. पर मैं excited भी थी. I love my parents and I always hoped that they would forgive me.
मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आशा है कि वो मुझे माफ़ कर देंगे फॉर माई सिंस ऑफ द पास्ट, जो भी मैंने पास्ट में गलत किया है, जो मैं पाप किए हैं उसके लिए, स्पेशली सिंस आई ऑनेस्टली डोंट थिंक दे वर सच grievous sins. This isn't exactly how I dreamed my wedding would be when I was a little girl. तो मैंने कभी भी ये सपना नहीं देखा था अपनी वेडिंग का जब मैं छोटी थी कि एग्जैक्टली इस तरीके से कुछ होगा, बट आई वॉन्ट इट टू बी एज अ परफेक्ट एज इट पॉसिबल कैन बी। पर अब मैं इसको जितना परफेक्ट हो सकता है उतना पॉसिबल करूँगी कि मैं इसको परफेक्ट करूँ। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द डे विद द डेथ थ्रेट, तो हमने ऑलरेडी परफेक्ट डे की स्टार्ट कर दिया है विद अ डेथ थ्रेट। So we have a lot of ground to make up. I roll out of bed, tugging on my oversized t-shirt, which I feeling decidedly less oversized lately. जो कि मैंने एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई है जो मुझे पता है टाइम के साथ साथ वो भी ओवरसाइज नहीं लगने लगेगी। बिफोर हिटिंग द bathroom, I walk over to the window to discover snowflakes have started to fall from the sky. So मैंने बाथरूम में जाने से पहले विंडो में देखा जो कि स्नोफॉल होने लगा था। It's only the beginning of December and the weather forecast didn't predict snow, but it's coming down fast enough to stick to the ground. तो अभी दिसंबर का स्टार्टिंग है और कोई वेदर फोरकास्ट ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि मतलब ऐसा वेदर हो जाएगा, बट अभी स्नो हो रहा है और इज स्नो ऑन योर वेडिंग डे इज गुड लक। शी इज़ कन्फ्यूज, शी इज़ जस्ट आस्किंग, और इज़ ओनली रेन, तो मतलब क्या स्नो गिरना भी गुड लक होता है, फिर रेन होना गुड लक होता है?